After knowing the definition of science and what is physics, we now study about what is the role of physics in our life, why we study physics, and how it works, and what is usage of physics in our life. All questions will be answered in this topic, role of physics in our daily life. Now I am reading what I am writing on the board. Physics is considered natural sciences. As we know, physics is a part of science, or we can, physics is a natural science. Physics is considered नेचुरल साइंसेस. फिजिक्स को नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान ही माना जाता है, क्योंकि इनसे प्रकृति के जुड़े हुए विषय वस्तुओं के बारे में ही इसमें पढ़ी जाती है, अध्ययन किया जाता है. फिजिक्स इज कंसिडर्ड नेचुरल साइंस बिकॉज इट डील्स विथ द थिंग्स लाइक मैटर, फोर्स, एनर्जी एंड मोशन. एज वी earlier know what is physics. Physics is the branch of science which deals with matter and energy, and we can also say physics is the branch in which we deals the things like matter, force, energy and motion. फिजिक्स को हम प्राकृतिक विज्ञान के अंदर देख सकते हैं, जो कि इस तरीके की चीजों जैसे कि पदार्थ, बल, फोर्स, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, मोशन, गति, ये सब चीजों से वो डील करता है. एज दिस ऑल आर रिलेटेड टू टास्क रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ. मतलब कि जैसा कि देख रहे हैं कि मैटर, पदार्थ, दिस इज ऑल्सो मैटर. फोर्स, I am writing on the board just because we applying the friction force on the board. I am walking, I am speaking because of a force, energy. I am standing here, I am telling, I am speaking. Why? Because I have energy stored in my body, that's why I am speaking. And this is in everyday life process. And motion, I am walking, I am walking, this is motion. So all the things, matter, force, energy and motion, these things we deals in physics, and this is related to the task related to everyday life. So we can say that physics studies हाउ द यूनिवर्स वर्क. कहने का मतलब कि हम अब कह सकते हैं कि फिजिक्स का अध्ययन यह है कि यह ब्रह्मांड कैसे कार्य कर रहा है. ये फिजिक्स का ही स्टडी है. हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, हाउ आवर रेफ्रिजरेटर वर्क्स, हमारा फ्रिज कैसे काम कर रहा है, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है. दिस इज ऑल included in physics and many more. In short, physics define how everything works around us. In short, we can say, yes, we can say the physics defines how everyday works around us, how the marker works on the board, how the color I have written is seeing red. Why? How I am walking, how I am speaking, how the fan works, how the refrigerator works, how the universe works. Everything around us, how it works, we study in the category of physics. When we look around us, we can see a number of things that works on the principle of physics. As I tell, if we look around us, anything you look is directly dependent on the physics. Anything, this door, this rope, this board stands here. Why? In the law of physics. Now we are going to see
द रोल ऑफ फिजिक्स इन वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो उसमें फिजिक्स का क्या महत्व है, क्या रोल है। अ नंबर ऑफ फिजिक्स आर इन्वॉल्व इन द वेरी सिंपल एक्ट ऑफ वॉकिंग। मतलब कि हम जब चल रहे हैं, बहुत साधारण सा काम है चलना, इसमें भी बहुत सारे फिजिक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारा फिजिक्स। इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, हमारा वजन का कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स के लॉ का कॉन्सेप्ट। डू यू नो हु इज न्यूटन? न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स बिकॉज द न्यूटन्स गिव्स लॉ ऑफ मोशन. So that's why Newton's law also involve how we are walking. When we walk, we put the foot on ground and move forward like we try to push the earth back. जैसे कि हम जब धरती पे पैर रखते हैं चलने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कैसे? जब हम अपने पंजों से पैर के धरती को, सरफेस को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड, this is ground, and we put the foot here. My drawing is not good, but I am trying to assume what happens. Suppose I am wearing a shoes, then we are wearing, foot is just put on the surface and we tries to push the earth back. So I suppose this is my foot and this is the board, a board as ground, and this is my foot, and we put the foot on the ground and we tries to move forward. How? See there, we push the ground back, so we move forward. Look on my foot. Look, I put the foot here, I put the foot here, and we try to move forward. How? See, my fingers flutters are try to push back. So I move. See, when we try to push the ground back, we move forward. We try to, now with this foot, we try to push the earth back, we move forward. So that's why in every role of, in the walking, there is a role of physics. There is a role of physics. There is concept of weight, Newton's law of friction, and many more extra. Now we Now we are going to study role of physics in cooking. कैसे खाना बनाने में भी हम कुकिंग का प्रयोग करते हैं। खाना कुकिंग का प्रयोग करते हैं, फिजिक्स का प्रयोग कुकिंग में भी होता है। कैसे हम अब जानेंगे। When we put pan with water or something else in it, जब हम किसी कढ़ाई में या किसी भी पात्र में, बर्तन में पानी या कोई और भी चीज, तेल भी गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं कढ़ाई में। When we put pan with water or something else in it on burning a stove or गैस, जलती हुई गैस पे या स्टोव पे रखते हैं। The energy in flame of a stove or gas touches cold pan. अब जो, जैसे हम कढ़ाई में पानी और तेल रख कर उसको गैस या चूल्हे पे चढ़ाते हैं, तो जब उसका फ्लेम गैस का, उसमें तो कुछ न कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी होती है, गर्म ही होती है। तो हम जब उस पे रखते हैं तो वो एनर्जी स्टोव का कोल्ड, जैसे टचेस कोल्ड पैन, ठंडी, पहले तो कढ़ाई ठंडा ही रहता है तो उसको टच करता है। उसके बाद इट स्टार्ट ट्रांसफरिंग हीट टू द पैन, thus making it hotter.
जब हम पानी लेकर स्टोव पे चढ़ाते हैं तो वह स्टोव ठंडा होता है और गैस जब जलता रहता है उसका फ्लेम गर्म होता है, कढ़ाई में टच करता है और कढ़ाई को वो गर्म करना शुरू कर देता है। इट स्टार्ट ट्रांसफरिंग हीट। क्यों? जब वो हीट गैस के फ्लेम से ट्रांसफर होकर पैन में जाता है तो इसकी वजह से कढ़ाई गर्म हो जाता है एंड द पैन दस मेकिंग इट हॉटर। दिस कम्स अंडर द कंडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और ये आता है संचालन एक होता है टॉपिक कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन आगे पढ़ोगे। कंडक्शन मतलब संचालन करना। जैसे कंडक्शन किसी भी जब हम धातु का एक सिरा सटाते हैं आग में तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जब लोहा को हम आग में डालते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद लोहा छूते हैं तो दूर आग में हम हाथ नहीं देते हैं, दूसरे छोर से भी छूते हैं तो लोहा गर्म होता है। ये कंडक्शन होता है। ये भी फिजिक्स के नियम है। ट्रांसफर ऑफ हीट आ रहा है, इसमें एनर्जी है। ये भी फिजिक्स में फिगर से आप समझ सकते हैं। और एक बार फिर से ये को देख लीजिए ठीक से और पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। आपको यदि ये देखने में दिक्कत हो रही हो, हैंड राइटिंग समझ ना आती हो तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। हम इसको हाथ से लिख के एक नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। Now, in cutting fruits and vegetables or something else, there is also a role of or importance of physics. How? Let's see. When we cut fruits and vegetables, we never realize that physics could be involved in such simple and easy task. कभी हम सोचे हैं कि अरे सब्जी काटने में फिजिक्स होगा? कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचते भी होंगे तो हमको लगता नहीं होगा कि इतना पिद्दू सा काम है, सब्जी काटना क्या, चाकू लो काट दो। लेकिन इसमें भी फिजिक्स है। देखता होगा कि जब चाकू कुंद हो जाते हैं, उनका धार खत्म हो जाता है तो चाकू से सब्जी नहीं कटता। काटने के लिए हमको तेजी से जोर से दबाना पड़ता है और तेज रहता है तो तुरंत 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 झट झट कट जाते हैं। क्यों? यहाँ भी फिजिक्स का कारण है। फिजिक्स ही वह कारण है। When we cut fruits and vegetables, we never realized that physics could be involved in such simple and easy tasks. But surely it is. In order to cut anything, we have to exert pressure on the knife. When we increase the pressure, we cut object easily. क्या करते हैं? चाकू काटने के लिए सब्जी या फ्रूट रख लेते हैं और उसको चाकू रख के दबाते हैं तो कटता है। और यदि हल्के दबाएंगे तो धीरे धीरे कटेगा। यदि चाकू रख के तेजी से दबाते हैं, कैसे देखते हैं? तेजी से प्याज काटना होता है एकदम कच कच, एकदम पूरा तेजी से चाकू मारते तो तेजी से कटता है। आराम से काटते तो आराम से प्रेशर देते। इससे हमको क्या और देखते हैं कि चाकू जब तेज रहती है एकदम पतली से, तेज करने का मतलब एकदम तेज नोकीली हो जाती है। और बोतर कुंद करने का मतलब उसके धार मोटी हो जाती है। तो जब पतली हो जाती है तो जैसे ये फ्रूट्स है और ये चाकू है, तो चाकू जब फ्रूट पे रखाएगी तो पतली रहेगी तो वो फ्रूट पे बहुत ही पतली सा जगह ले पाएगा और जब मोटा हो जाएगा तो ज्यादा जगह लेगा। तो जब पतला रहता है तो तेजी से कट जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब एरिया यानी कि उसका जो क्षेत्रफल कम होता है तो फोर्स प्रेशर ज्यादा लगता है और जब चाकू मोटी हो जाती है तो कस के काटना पड़ता है यानी प्रेशर ज्यादा लगता है। तो यह भी फिजिक्स ही है और कुछ नहीं है। जो कि अब है सीइंग, देखने में। इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग, देखने में भी। अब सीइंग, अब आप सोचिएगा कि अब इतना छोटा छोटा बात में भी आप देखने में, चलने में, सब्जी काटने में, पकाने में, हम कुकिंग क्लास चला रहे हैं कि जीवन आपको हंसी आ रहा है, लेकिन ये सही बात है। देखने में भी फिजिक्स का उपयोग है। कैसे देखते हैं
Our eyes is an incredible optical device gifted by God। सही बात है भाई। हमारा आँख एक बहुत ही अतुल्य ऑर्गन है, प्रकाशीय यंत्र है जो कि भगवान के द्वारा हम दिए हैं। आँख बनाते नहीं हम, आज भगवान ही दिए हैं। और आँख के जैसा कोई और भी चीज़ आप सोच सकते हैं, आँख नहीं रहेगा तो शरीर का क्या। आँख नहीं रहता तो आप ये वीडियो नहीं देख पाते, आँख नहीं रहता तो हम ये देख कर लिख नहीं पाते, आँख नहीं रहता तो हम देख नहीं पाते कि हमारी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, ये भी तो नहीं देख पाते। तो आई इज एब्सोल्युटली अ इनक्रेडिबल ऑर्गन गिफ्टेड बाय द गॉड। वी कैन सी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय दिस ऑर्गन। हम लोग इस दुनिया के अद्भुत नज़ारे देख पाते हैं। कहा भी जाता है कि आँख है तो जहान है। दिस इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब आँख हम देखते हैं तो ये भी फिजिक्स है। कैसे? तो ये फिजिक्स है क्योंकि हम देख पाते हैं। किस लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, प्रकाश के अपवर्तन के अनुसार। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब हम ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? आप आँख का तुलना कैमरा से करिए। कैमरा अंधेरे में फोटो खींच पाता है? नहीं। आँख भी अंधेरे में नहीं देख पाता। जब लाइट आती है तो कैमरा से फोटो खींचता है, तो लाइट आती है तो हम देख भी सकते हैं। क्यों? जब हम जैसे हम ये बोर्ड देख रहे हैं तो बोर्ड हम क्यों देख रहे हैं? जब ये बोर्ड से हम सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है या बल्ब की प्रकाश जो निकलती है इस पे पड़ती है और ये इस पे पड़ के इससे रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आँखों तक पहुँचती है। तो हमारे आँख में एक लेंस होते हैं जिनसे ये अपवर्तित होकर हमारे रेटिना पे फोकसित होती है। ये सारे प्रोसेस फिजिक्स का है। तो जब हम आँख के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ भी। और फिजिक्स में भी हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इस बात पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप यहाँ ये जानिए कि देखने में भी किस तरीके से फिजिक्स का इम्पोर्टेंस है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि ओपनिंग एंड अब आप सोचिएगा कि अब ये आ गए, आप देखने पे आए थे, अब दरवाजे पे आ गए हैं। दरवाजा को खोलना बंद, अरे खोलना बंद में क्या फिजिक्स है? दरवाजा को ऐसे किए खोल दिए बंद कर दिए, इसमें क्या फिजिक्स? इसमें भी फिजिक्स है प्यारे बच्चों। कैसे? अब हम देखते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि दरवाजे में, जैसे ये दरवाजा है हमारा, ये दरवाजा है, ये दरवाजा, यहाँ पे हिंज लगे हुए हैं पकड़ने, जिसको पकड़ के हम खींचते हैं। आप कभी सोचे हैं कि ये हिंज सबसे किनारे में ही क्यों लगे रहते हैं? आप जैसे मेरे घर के दरवाजे में भी देख सकते हैं। थोड़ा नजदीक जाकर देखिए ना, तब ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है और ये जो हम यहाँ लगाए हुए हैं दरवाजे को बंद करने के लिए, यहाँ 1 सेकेंड में बंद 1 सेकेंड में खोल देते हैं। क्यों हम यहाँ क्यों लगाए? हम यहाँ क्यों नहीं लगाए? आप ये सोच सकते हैं। क्यों? ये दरवाजे का लॉक हम इधर लगा देते तो नहीं खुलता, इधर भी ऐसे बंद करके यहाँ लगा देते और ये यहाँ के बजाय यहाँ कर देते। तो क्यों ये हिंज यहाँ लगाए हैं? बीच में भी हिंज लगा सकते थे, ऐसा क्यों? ये फिजिक्स है। यही तो सोचना है कि यदि देखिए, जब हम यहाँ से दरवाजे को जैसे यहाँ खोले और इसको बंद करने के लिए यहाँ से ना बंद करके हम यहाँ से बंद करने का कोशिश करने, कभी देखिएगा यहाँ से बंद आपको ज़्यादा कस के धक्का देना पड़ेगा और यहाँ से इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधारित है टॉर्क पे। टॉर्क होता है क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम है तो टॉर्क कम होगा। तो टॉर्क ज़्यादा है तो खोलने में आसानी, लगाने में। टॉर्क कम है तो मुश्किल हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से फिजिक्स पर लिख लेते हैं डेफिनेशन। डोर्स का स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा। डोर्स। फिजिक्स इज ऑल्सो, दिस इज हैपन ड्यू टू torque. If you want to know what is torque, then you can write
इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं कि टॉर्क को ज़्यादा करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाएंगे या तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो जैसे कि हमको कोई 15 टॉर्क चाहिए, तो हम या तो 3 फोर्स लगा लें या 5 डिस्टेंस लगा दें 5 मीटर, या ये भी हो सकता है कि हम फोर्स को ज़्यादा लगा दें और डिस्टेंस को कम कर दें। तो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस को तो हम यही रीजन है कि हम दरवाजे के आखिरी छोर पे एकदम हिंज लगाते हैं, क्योंकि देखते हैं दरवाजा कहाँ से, यहाँ से मुड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस तो हम दे दिए तो फोर्स हम कम लगाएंगे, तो मेरा उतना जितना टॉर्क चाहिए उतना। और यदि हम ये हिंज को इधर ही कर दें, तो हम दरवाजा यहाँ से घुमाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कमा देंगे, तो हमको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि हम सबसे साइड में लगाते हैं हिंज, ताकि इजली से बल या खुल जाए। तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन, ये तो एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अब हम इस टॉपिक के रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारे जीवन में फिजिक्स का क्या रोल है, बहुत सारे एग्जांपल हम देखें। अब इसके हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इसका अब हम एक क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि क्या रोल है, कैसे रोल है। तो हम लिखते हैं हियर वी अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखें और हम कंक्लूजन पे आए। क्या कंक्लूजन पे आए कि here we have seen a limited examples of physics, but हमने यहाँ पे बहुत सारा बहुत लिमिट 2-4 ही चीज देख पाए हैं, जबकि इतना ही नहीं है, बहुत सारा चीज है। इतना कम में फिजिक्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट ओवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय दिस ब्रांच ऑफ साइंस, हमारा पूरा जिंदगी ही इसी ब्रांच ऑफ, जो ये विज्ञान की यही शाखा, किसकी, फिजिक्स द्वारा ही पूरे जिंदगी को चलाया जाता है, गवर्न किया जाता है। हमारे पूरे जिंदगी पे ही फिजिक्स का राज है। फिजिक्स गवर्न्स a lot of natural phenomena as well as define a number of man-made things. फिजिक्स है वो बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन पे राज करती है। बहुत सारा फिजिक्स है तभी नेचुरल फेनोमेनन है। फिजिक्स है तभी बिजली चमकती है तो हम देख पाते हैं। फिजिक्स है तभी बादल गड़गड़ाती है तो हम सुन पाते हैं। फिजिक्स है तभी बारिश हो पाती है। फिजिक्स है तभी सूरज की रोशनी निकलती है। फिजिक्स है तभी चांद चमकता है। फिजिक्स है तभी धरती घूमती है। फिजिक्स है तो हम बोल रहे हैं। फिजिक्स है हम चल रहे हैं। फिजिक्स है तो हम खा रहे हैं। बहुत सारे मैन मेड थिंग है। फिजिक्स है तो कार है। फिजिक्स है तो एसी है। फिजिक्स है तो माइक्रोवेव ओवन है। हमारे चारों ओर हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र भी नहीं जाती, वहाँ तक फिजिक्स की पहुँच। हमारा स्केलेटर कितना आराम से चढ़ने में, बहुत सारे मोटे लोग होते थे तो चढ़ने में हार जाते थे, तो कोई मोटा आदमी होगा तो उसको दिक्कत आया होगा तो उसको सोच दिया होगा क्यों ना हम कुछ ऐसा चीज़ बना दे जिससे, तो उसने बना दिया स्केलेटर। पैर रखा 1 सेकंड में ऊपर, पैर रखा फिर नीचे, स्केलेटर। तो अब हम कर सकते हैं कि वी कैन से दैट आवर वर्ल्ड इज रूल्ड बाय द फिजिक्स। पूरे विश्व पे फिजिक्स का आधिपत्य। यदि फिजिक्स खत्म हो जाए तो पूरे विश्व में हम बिल्कुल एकदम हो जाएंगे निर्जीव की तरह। क्योंकि हम, सबसे बड़ी बात, आप जिस माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल,
दिस इज द मिरेकल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स है तभी यह चमत्कार हो पाया कि आप हमको उतने दूर बैठ कर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपका अगले दिन फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार नमस्कार करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, पढ़िए, प्रिपेयर करिए, पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो, किसी भी शब्द ना दिख रहा हो, कोई चीज़ में समझने में, टॉपिक में दिक्कत हो, इन एवरी स्टेप ऑफ line, in every step of a topic you can discuss with me by the कमेंट करिए। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक तो करिए ही करिए, क्योंकि लाइक नहीं करिएगा तो हमको लगेगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हमको आत्मविश्वास भी नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ टेक केयर, सेफ होम, स्टे होम एंड स्टे बाय।